Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our video, then please do like, share and subscribe our channel. You can also follow us on Instagram and Telegram, the link of which is given in the description box below. Today in this video, we will discuss about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Previously, we have covered chapter 1 and chapter 2 primarily, and we have covered till section 11 of the act. Okay, that means we have covered till here in the previous 3 series of the Domestic Violence Act 2005. So today we will start from chapter 4 of the act, that is procedure for obtaining orders of relief. So that starts from section 12. So let's see what's given in the section. An aggrieved person or a protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more reliefs under this act. इसका मतलब है कि जो aggrieved person है वो, या तो जो protection officer है वो, या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि एग्रीव्ड पर्सन के होकर कोई और भी मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं वन और मोर रिलीफ के लिए, यानी कि एग्रीव्ड पर्सन के रिलीफ के लिए वो एक एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को पेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड that before passing any order on such application, the magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider. इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पास करने से पहले, जो एप्लीकेशन उनको मिला है उसके बेसिस पे ऑर्डर का पास करने से पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो देखेंगे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट उनको पेश किया है, उनको सबमिट किया है रिगार्डिंग दिस वेरी केस, उनको वो कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले. Moving on to the next subsection, the relief sought for under subsection 1 may include a relief for issuance of an order for payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic violence committed by the respondent. इसका मतलब है कि जो रिलीफ है वो एक्चुअली दो टाइप के होंगे. कैसे? में इंक्लूड अ रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेजेस. कोई ऑर्डर इशू करवा सकते हैं कंपेंसेशन या फिर डैमेजेस को पे करने के लिए, नहीं तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक सूट फाइल कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस के लिए अगर उनको कोई भी इंजरी पहुंची है डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान जो कि रिस्पोंडेंट ने उनके साथ किया हो. एनी काइंड ऑफ इंजरी, ओके, वो मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक इंजरी हो सकता है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, अगर उन सब में से कोई इंजरी उनको पहुंचती है तो उनके लिए वो एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कंपेंसेशन और डैमेजेस के लिए, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिक्री फॉर एनी अमाउंट as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree, and the decree shall, notwithstanding anything contained in the code of civil procedure or any other law for the time being in force, be executable for the balance amount if any left after such set off. यानी कि अगर कोई डिक्री निकली है, केस एडजुडिकेट हो चुका है और डिक्री निकली है कि कंपेंसेशन या डैमेजेस के रूप में कोई अमाउंट एग्रीव्ड पर्सन को दिया जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट ने केस चलने के दौरान कोई भी पेमेंट किया हो, एग्रीव्ड पर्सन को कोई भी पेमेंट किया हो, तो वो अमाउंट स्ट्रेट सेट ऑफ हो जाएगा उस अमाउंट से जो कि डिक्री में दिया है फॉर कंपेंसेशन और डैमेजेस, ठीक है, वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा. ओके, मूविंग टू सेक्शन 3,
Every application under subsection 1 shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto. यानी कि जो एप्लीकेशन हम लोग डालेंगे मैजिस्ट्रेट के पास, दैट शैल बी सच, और उसी पर्टिकुलर वो सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स उस एप्लीकेशन में होना चाहिए जैसा कि इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन, the magistrate shall fix the first date of hearing which shall not ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court. यानी कि जो एप्लीकेशन एग्रीव्ड पर्सन सबमिट करेंगे कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट उसके 3 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग का डेट देंगे. Next subsection, the magistrate shall endeavour to dispose of every application made under subsection 1 within a period of 60 days from the date of first hearing. इसका मतलब ये है कि जो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट है वो एप्लीकेशन मिलने के 60 डेज़ के अंदर केस को ख़त्म कर देंगे, यानी कि केस को एडजुडिकेट कर देंगे. Moving on to our next section, that is section 13, service of notice. A notice on the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the protection officer, who shall get it served by such means as may be prescribed on the respondent and on any other person as directed by the magistrate within a maximum period of 2 days or such further reasonable time as may be allowed by the magistrate from date of its receipt. यानी कि सेक्शन 12 के तहत जो एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, तो वो जो नोटिस है, जो समन है, वी कैन से दैट जो नोटिस है कि फर्स्ट हियरिंग का डेट ये है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्व करेंगे रिस्पोंडेंट को या फिर कोई भी पर्सन जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्टेड किया है कि इनको जो नोटिस है, नोटिस ऑफ हियरिंग सर्व किया जाएगा, उन सभी लोगों को नोटिस ऑफ हियरिंग सर्व किया जाएगा. कितने दिनों के अंदर? 2 दिन के अंदर. ठीक है, 2 दिन के एप्लीकेशन मिलने के 2 दिन के अंदर उन लोगों को नोटिस ऑफ हियरिंग सर्व किया जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सबसेक्शन, अ डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस made by the protection officer in such form as may be prescribed shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the magistrate unless the contrary is proved. यानी कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर वो नोटिस को सर्व करने के बाद एक डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, तो वो ही सफिशिएंट प्रूफ होगा कि रिस्पोंडेंट के ऊपर और जिन जिन को मैजिस्ट्रेट ने प्रिस्क्राइब किया है उन सब के ऊपर नोटिस सर्व किया गया है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 14, काउंसलिंग. द मैजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट or the aggrieved person either singly or jointly to undergo counseling with any member of the service provider who possess such qualification and experience in counseling as may be prescribed. अगर मैजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में लगता है कि रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी मेंबर से कहेंगे कि उन लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही हो काउंसलिंग करने के लिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन, वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज़ इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months. यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट ने काउंसलिंग के लिए कोई डायरेक्शन इशू किया है, तो वो उस काउंसलिंग के 2 महीने के अंदर नेक्स्ट हियरिंग का डेट फिक्स करेंगे. ओके, नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 15, assistance of welfare expert. In any proceeding under this act, the magistrate may secure the services of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit for the purpose of assisting him in discharging his functions. अगर मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उनको किसी वेलफेयर एक्सपर्ट की
सहायता चाहिए, जो कि प्रेफरेबली एक वुमेन ही हो, और हो सकता है कि वो वुमेन एग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड हो, ना भी हो सकते हैं, तो उस पर्सन के हेल्प और असिस्टेंस को मजिस्ट्रेट अपने केस को डिस्पोज करने में यूज़ कर सकते हैं. ओके. सेक्शन 16, proceedings to be held in camera. If the magistrate considers that the circumstances of the case so warrant, and if either party to the proceedings so desires, he may conduct the proceedings under this act in camera. यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि केस कुछ ऐसा है कि दैट डिमांड्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा में हो, तो वो इन कैमरा में ही केस के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेंगे. इन कैमरा का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी बाहर का इंसान नहीं रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. इट विल नॉट बी एन ओपन कोर्ट. सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन रहेंगे, रिस्पोंडेंट रहेंगे, और उनके तरफ से जो काउंसिल या एडवोकेट्स है वो रहेंगे. बस दैट्स विल बी ऑल. दैट विल बी ऑल. देयर विल बी नो other party or no general public. It will not be an open court. Okay. Moving to our next section, that is section 17. Right to reside in a shared household. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम. यानी कि जो एग्रीड पर्सन है, जो वुमेन है, वो अगर जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे रिस्पोंडेंट के साथ, उनका एक अधिकार होगा कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे, रिसाइड करे. ठीक है. आप मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो शेयर्ड हाउस होल्ड से एग्रीड पर्सन को निकाल नहीं सकते हैं. ओके. The aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent, save in accordance with the procedure established by law. जैसे कि हमने पहले सबसेक्शन में पढ़ा है सेक्शन 17 के, कि एग्रीव्ड पर्सन का एक राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड में रिसाइड करने के लिए. तो जो रिस्पोंडेंट है वो एग्रीव्ड पर्सन को एविक्ट या एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड से, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट, ओके, दोनों को ही, एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ऑन प्राइमा फेसी satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from. इसका मतलब है कि रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन दोनों को सुनने के बाद, और मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, नहीं तो होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेंगे एग्रीव्ड पर्सन के, यानी कि विमेन के फेवर में, और रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करेंगे क्या क्या करने से. चलिए देखते हैं. कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करने से रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करेंगे. एडिंग और एबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अगर रिस्पोंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस को कमिट करने में सहायता करते हैं तो उसको प्रोहिबिट करेंगे. Entering the place of employment of the aggrieved person, or if the person aggrieved is a child, its school or any other place frequented by the aggrieved person. यानी कि रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन अगर नौकरी कर रही है तो रिस्पोंडेंट उसके प्लेस ऑफ वर्क में एंटर नहीं कर सकते हैं, या फिर वो अपने बच्चों के स्कूल में नहीं जा सकते हैं. ठीक है. तो मैजिस्ट्रेट उनको इन सब जगह में जाने से प्रोहिबिट करेंगे. अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर विद द एग्रीव्ड पर्सन, इंक्लूडिंग क्या क्या, पर्सनल, ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट. यानी कि रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन से किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे. ओके. एलिनेटिंग एनी एसेट्स, ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स और बैंक अकाउंट्स यूज्ड और हेल्ड और एंजॉयड बाय both the parties, jointly by the aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent, including her
स्त्रीधन or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate. यानी कि मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना रिस्पोंडेंट कोई भी एसेट यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको बेच नहीं सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं अगर रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन का कोई भी जॉइंट बैंक अकाउंट है या फिर बैंक लॉकर है जिसमें कि एग्रीव्ड पर्सन का कोई स्त्रीधन रखा है या फिर ज्वेलरी प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ भी हो, वो रिस्पोंडेंट को वो सारे चीज़ों से वो प्रोहिबिट करेंगे. यानी कि द रिस्पोंडेंट कैन नॉट alone dispose of the assets or operate the bank lockers and the bank accounts held either jointly or singly with the aggrieved person. Okay, now moving on to our next subsection, causing violence to the dependents, other relatives or any person who give the aggrieved person assistance from domestic violence. Okay, यानी कि aggrieved person को अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस से बचा रहा है, ठीक है, सपोज कोई रिलेटिव हो, कोई डिपेंडेंट हो जो एग्रीव्ड पर्सन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा रहा है, तो रिस्पोंडेंट उनके साथ कोई भी वायलेंस नहीं कमिट कर सकता है. ठीक है, दिस इज़ प्रोहिबिटेड बाय द मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करेंगे इस चीज़ से. ठीक है, कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर. और प्रोटेक्शन ऑर्डर में और जो भी चीज़ें दी गई है कि रिस्पोंडेंट कमिट नहीं कर सकता, उन सारे चीज़ों से मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को कमिट करने से प्रोहिबिट करेंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन, while disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order. यानी कि जो एप्लीकेशन एग्रीव्ड पर्सन या फिर एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में जो भी प्लेस किया है अंडर सेक्शन 12, तो मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो एक रेसिडेंस ऑर्डर पास करेंगे. उस रेसिडेंस ऑर्डर में क्या लिखा होगा आइए देखते हैं. Restraining the respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household. यानी कि respondent को restrain किया जाएगा, यानी कि जो respondent है वो aggrieved person को डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड से. ठीक है, यानी कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन रहते हैं या फिर रहते थे, वहाँ से वो एग्रीव्ड पर्सन को निकाल नहीं सकते हैं. ठीक है, रिस्पोंडेंट निकाल नहीं सकता है. डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड. अगर डोमेस्टिक वायलेंस वो करता है और ये मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो चुके हैं कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो वो रिस्पोंडेंट को क्या डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड को छोड़ दें. ओके, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड इन विच द एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स. यानी कि रिस्पोंडेंट को या फिर उसके किसी भी रिलेटिव को वो प्रोहिबिट कर सकते हैं कि आप जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड कर रहे हैं शेयर्ड हाउस होल्ड के, रिस्पोंडेंट या तो उसके कोई भी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर उस पोर्शन में दाखिल नहीं हो सकता है. ठीक है, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड और इनकम्बरिंग द सेम. यानी कि रिस्पोंडेंट जो शेयर्ड हाउस होल्ड है जिसमें एग्रीव्ड पर्सन रह रही है उस शेयर्ड हाउस होल्ड को डिस्पोज या एलिनेट नहीं कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट नहीं कर पाएगा. ठीक है, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ मैजिस्ट्रेट. यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड में जो भी राइट है वो रिस्पोंडेंट छोड़ नहीं सकता है एक्सेप्ट विदाउट द लीव ऑफ द मैजिस्ट्रेट. यानी कि मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना उसका जो राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड के ऊपर वो उसको छोड़ नहीं सकता है, रिनाउंस नहीं कर सकता है. ओके,
Moving on to our next subsection, that is F, directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household, or to pay rent for the same if the circumstances so require. यानी कि रिस्पोंडेंट को मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप एग्रीव्ड पर्सन को कोई दूसरा घर या फिर कोई दूसरा एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में एंजॉय कर रही थी. प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज़ अ वुमन. अगर कोई पर्सन वुमन है तो उसके अगेंस्ट में क्लॉज बी में जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया जाएगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19. The magistrate may impose any additional conditions or pass any other direction which he may deem reasonably necessary to protect or provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person. इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट कोई एडिशनल कंडीशन पास कर सकते हैं जहाँ पे ये कहा जाएगा कि एग्रीव्ड पर्सन या फिर उनके बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके या सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सकता है. किसके अगेंस्ट में? रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में. ठीक है. द मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. यानी कि मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट से कोई भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. क्या? किस चीज़ के लिए? कि वो फ्यूचर में कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कमिट करेगा. ठीक है. इसके फॉर्म में, इसके फेवर में मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. सबसेक्शन 4. An order under subsection 3 shall be deemed to be an order under chapter 8 of the Code of Criminal Procedure and shall be dealt with accordingly. जो बॉन्ड की बात हम लोग कर रहे थे अभी पहले सबसेक्शन में, वो चैप्टर 8 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973 के तहत उसको डील किया जाएगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन 5. While passing an order under subsection 1, subsection 2 or subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order. इसका मतलब ये है कि सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो वो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके ऑफिसर इंचार्ज को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए या फिर उनको असिस्ट किया जाए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन. While making an order under subsection 1, the magistrate may impose on the respondent obligations relating to the discharge of rent and any other payment having regard to the financial needs and resources of the parties. यानी कि सबसेक्शन 1 के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर करते हैं तो वो रिस्पोंडेंट के ऊपर क्या क्या इम्पोज कर सकते हैं कि जो रेंट है या फिर अदर पेमेंट है, यानी कि बच्चों के स्कूल फीस वगैरह जो भी है वो रिस्पोंडेंट पे कर दे. ठीक है. जो एग्रीव पर्सन को चाहिए वो जो फिनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है जो एग्रीव पर्सन को डिस्चार्ज करना पड़ेगा वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि वो रिस्पोंडेंट डिस्चार्ज करे. यानी कि अगर वो किसी किराए के घर में रहते हैं तो वो किराया, बच्चों के स्कूल फीस वगैरह रिस्पोंडेंट को ऑर्डर किया जा सकता है कि वो पे कर दे, उन सब रेंट्स और बाकी पेमेंट्स को पे कर दे रिस्पोंडेंट. ओके. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन. द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिस्डिक्शन द मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन अप्रोच्ड टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर. इस सबसेक्शन का मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के जिनके जुरिस्डिक्शन के तहत मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया गया है वो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करने में
मदद, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन, दैट इज सबसेक्शन 8. The magistrate may direct the respondent to return to the possession of the aggrieved person her stridhan or any other property or valuable security to which she is entitled to. तो मैजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को क्या डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर रेस्पोंडेंट के पोजीशन में एग्रीव्ड पर्सन का कोई भी स्त्रीधन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, वो एग्रीव्ड पर्सन को रिस्पोंडेंट लौटा दे, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करेंगे टिल सेक्शन 19, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं जो कि आपको सीरीज़ में मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द एक्ट and I hope you all have liked the video and things are clear to all of you. If you have any confusion or any queries regarding today's video, then you can comment section below and please do like, share and subscribe our channel. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. That will be all for today. I hope you all have liked the video. Thank you so much. Take care. Bye bye.